Good morning. I'm Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So in this video, we will discuss very important aspect, importance of time. Now, I find clear distinction between successful people and unsuccessful people. During my lifetime, I have come across many highly successful people, and I have also seen many failure people. What is the distinction between them? I observed a very simple difference between these two set of people is concern for time. The successful people were those have not wasted even a single minute of their life in unnecessary discussions. They were the people, they were highly adjustable to the circumstances and working according to circumstances instead of discussing if and buts. And I have found the people, those were very argumentative, those were always engaged in discussions. Initially, they look to be very good, but they are the people, those remain laggard in their life because they have wasted lot of energy and time only in discussion. And that's why I advise you in the period of this adversity, don't waste your time in discussion how exam can be held, when exam can be held, is it possible to hold the exam or not. These are all unnecessary discussions. These are the task of the employer, not of the candidate. So many candidates are wasting time on the task that is to be accomplished by the employer. They will think how to conduct the exam. They will think how to manage the process. This is not your task. Your task is to perform in exam. And for that, with the God grace, you have got the additional time. And in competition, if your competitor has got the additional time and you are wasting that time, you are lagging behind him or her on daily basis. Because the date of examination will be same for everyone. So if you are getting extra time, they are also getting extra time. The intelligent people or sensible people will be utilizing this time in clarifying their doubts or strengthening their weak areas. But other people will be wasting their energies. How exam can be held? This has happened, that has happened, everything has gone bad, and I am in depression, I am not feeling well. These are all symptoms of a weak personality. Be strong, value the time, utilize the time, plan your activities, and execute. One thing is certain, exam will happen. Only as uncertain thing is when it will happen. Now I find there are some people, they are discussing, I have seen a RTI where number of vacancies is reduced by A bank or V bank. How does it make a difference to you? If there are 10 banks, say, 5 banks have increased the vacancies, 3 banks have reduced the vacancies, overall vacancies are higher, then how it affects you? Because the candidates, those were called for interview, were say 3 to 4 times of number of vacancies listed in the notification. But if aggregate vacancies are higher than notified, naturally your chance is better. So why you are bothering that A bank has reduced the vacancy or B bank has reduced the vacancies? You should bother that overall vacancies are higher. Similarly, whether this exam will happen in the month of May or first week of June or in the July, it should not bother you. It should bother you that you have to prepare. It should bother that your competitor is getting the extra time and you are not utilizing the time.
So your energies should be to use the time optimally. Don't waste your energies. Don't waste this precious time. This will not come back. There are serious candidates. They are seriously working. You have to compete with them. You have to go ahead of them because number of vacancies may be lesser, may be same, may be higher. You don't know. But exam will be there. So you have to clear the exam. And once you have to clear the exam, the only thing that will help you, your preparation. So somebody has got the extra time, you have also got the extra time. It is your choice whether to waste this time or utilize it. So all my videos are in one direction, don't waste your time. Utilize your time. The moment you understand this basic philosophy, you are the winner. If you fail to understand this basic philosophy, you may lose a golden chance that is coming your way. So how to prepare? This is covered in my various videos. I have suggested you a very good mock test. If you have not taken, take that mock test. Then I have suggested a very good PDF for current affairs. If you have not taken, subscribe that. Link of this mock test as well as this PDF is available in description column. Then how to prepare for various examinations? Again, these videos are available on channel. Watch those videos. Daily schedule is there. Follow that schedule. You will be successful. So now this is the time to avoid wasteful discussion. Now this is the time to act. So be focused and be successful. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अपने जीवन काल में मैंने बहुत हाईली सक्सेसफुल लोगों को भी देखा और बहुत फेलियर्स को भी देखा. दोनों में क्या अंतर है? मैंने देखा कि जो लोग वक्त को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते थे, हर समय वक्त के अनुसार अपने को बदल कर काम में जुटे रहते थे, वो लोग जिंदगी में सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचे. दूसरे लोग वो थे जो अपने को बहुत लॉजिकल समझते थे, हर समय आर्गुमेंट में लगे रहते थे, विषय पे तर्क वितर्क करते थे. मैंने देखा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत वक्त सिर्फ तर्क वितर्क में बिता दिया, पर वो उस वक्त को यूज नहीं कर पाए काम करने में और वो बहुत पिछड़ गए. और जब कोई व्यक्ति पिछड़ जाता है फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता है. जीवन सबको मौका देता है, रेस इकट्ठे शुरू होती है और उस रेस में आगे बने रहना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसे आज एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन होती चली जा रही है, तो ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए पोस्टपोन हो रही है, आपके कंपटीटर के लिए पोस्टपोन हो रही है. अब जो व्यक्ति तो ये सोच रहा है एग्जाम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे गैदरिंग बनेगी, अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, वो तो टाइम वेस्ट कर रहा है. दूसरा व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक गिफ्ट है मुझे और टाइम मिल गया है, और वो जी जान से पढ़ाई में लगा हुआ है. वो एक भी क्षण इस बात पे नहीं वेस्ट कर रहा है कि ये एग्जाम क्यों पोस्टपोन हो गया. उसको तो ये है मुझे टाइम मिल गया, वो और वो उस पर लगा हुआ है, वो आगे निकलता चला जाएगा. दूसरा व्यक्ति जो हर ग्रुप में जाके अपने कमेंट पोस्ट कर रहा है, रीड कर रहा है, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, वो अपना वक्त जाया कर रहा है. क्योंकि एग्जाम कब होंगे, कैसे होंगे, ये आपका काम नहीं है, ये काम है एम्प्लॉयर का. वो इस पे लगा हुआ है कि एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है, वो कर लेगा इसको. आपका काम है एग्जाम को पास करना, कंडक्ट कराना आपका काम नहीं है. दोनों में डिस्टिंक्शन समझिए. आपका काम है एग्जाम को पास करना. तो एग्जाम पास कैसे होगा? जब हम प्लान करेंगे और पढ़ेंगे. तो हम अपना काम करें ना. कैसे एग्जाम हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, ये दूसरे पे छोड़ दें आप. एक चीज अपने मन में ठान लें कि एग्जाम तो होना ही है. जब होना है तो मुझे पास करना है. अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, सर आप बता रहे हो पर मैंने एक आरटीआई पढ़ी है जिसमें कुछ वैकेंसीज गिर गई हैं. अरे इससे आपको फर्क क्या पड़ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा.
मान लो उसके अंदर 12 बैंकों ने लेना है, एक ने वैकेंसी बढ़ा दी, एक ने घटा दी, और ओवरऑल वैकेंसी बढ़ चुकी हैं, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ चुका है या घट चुका है? किस बात पे डिस्कशन कर रहे हैं कि ए बैंक ने घटा दी, बी बैंक ने बढ़ा दी, सी ने घटा दी, डी ने बढ़ा दी? ओवरऑल देखिए ना आप, ओवरऑल वैकेंसीज ज्यादा है। तो ये तो टेंटेटिव होती है वैकेंसीज, इसमें क्या बढ़ घट गया? उन्होंने अपना एस्टिमेशन किया, बाद में देखा कि नहीं ये एस्टिमेशन नहीं, ये होना चाहिए, वो चेंज कर दिया, उसमें क्या हो गया? पर दूसरे ने, जिसने एक भी वैकेंसी नहीं बताई थी, उसने कहा मैं तो 1000 लोग लूंगा, ओवरऑल तो बढ़ गई ना। तो हमें इन चीजों से पढ़ने से, और मान लो वो चेंज हो भी गई, अब तो आप इंटरव्यू दे के आ गए, उस पर डिस्कशन से आपको मिलेगा क्या? सर मैं डिप्रेशन में हूं, वैकेंसी घट, अरे तेरे डिप्रेशन से होगा क्या? पहली चीज हमें यह समझनी है, आपके डिप्रेशन नॉन डिप्रेशन से कोई दुनिया बदलने वाली नहीं है। दुनिया में वो लोग कामयाब होंगे जो भी सर्कमस्टांसेस है उसके अनुसार अपने को बदल पाएंगे। आप अपना काम करते रहिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आप इस बात की चिंता छोड़ दो कि ये एग्जाम कैसे होंगे, ये होंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉइज की जरूरत है, ये बात हमें समझनी है। और क्योंकि उनको एम्प्लॉय चाहिए तो वो कोई ना कोई मेथड निकालेंगे जिससे उनको एम्प्लॉय मिले। हमें तो उन्होंने बताया हुआ है ना कि आपको इस तरह का एग्जाम पास करना है, उसकी तैयारी करो ना, उस पर टाइम लगाइए। आपको मैंने एक बहुत अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया है। अभी तक नहीं लिया है तो उसको ले लीजिए, एनुअल प्लान को। एक अच्छा पीडीएफ मैंने ढूंढ दिया आपको करंट अफेयर के लिए, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कॉलम में दे दिया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा बाकी कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारे वीडियोस हैं चैनल पे, उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी एग्जाम आप देना चाह रहे हो उन वीडियोस को देखो और डेली शेड्यूल को फॉलो करो। ये जो एडिशनल टाइम मिला है इसको यूटिलाइज करो, इसको इन चिंताओं में वेस्ट मत कर दो कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि जब हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास टाइम नहीं होगा। और ऐसा हर साल होता है लोगों के साथ, लोग सोचते रहते हैं, अचानक नोटिफिकेशन आता है, फिर पूछने लगते हैं सर अब 2 महीने में हो जाएगा, सर मेरा एग्जाम 1 महीने में। अरे आप 1-2 महीने की इंतजार क्यों कर रहे हो? जब आपको पता है ये एग्जाम होना है, पैटर्न आपको पता है, तैयारी करते रहो ना, आने दो, जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप तो तैयार रहो। सो आप अपना काम करो। और जो मैंने देखा जिंदगी में सक्सेसफुल लोग वो हैं कि जो वो ये एक्सटर्नल चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं जाया करते थे, वो तो उनको जो काम दिया उसमें लग जाते थे, उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता था दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया तो चलती रहती है, दुनिया कभी रुकती नहीं है किसी के लिए। और आगे वही निकलते हैं जो अपने काम पे जुटे रहते हैं, पिछड़ते वो हैं जो उन चीजों पे वक्त जाया करते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। अब इलाज तो कोरोना वायरस का डॉक्टर ढूंढेंगे, ये एक्सपर्ट ढूंढेंगे ना, इसमें आपकी डिस्कशन से क्या फर्क पड़ जाएगा? एग्जाम तो एजेंसीज कराएंगी, वो निकालेंगी मेथड कैसे कराना है, आपकी डिस्कशन से उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ेगा कि आपका कंपटीटर जो इन बातों में नहीं पढ़ रहा है, जो इन पचड़ों में नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करके रोज अपने नॉलेज का लेवल इंप्रूव करता जा रहा है। और मान लीजिए आप ये नहीं कर रहे हो तो आप सेम नॉलेज पे भी होते हुए रोज उससे पिछड़ रहे हो। वो आगे बढ़ रहा है, आप वहीं खड़े हैं। ये समझिए, एक रेस है जिसमें आप वहीं खड़े हैं और एक आदमी रोज आगे बढ़ रहा है, तो आपका और उसके बीच का दूरी बढ़ती चली जा रही है। जबकि रेस में होना क्या है, आपको उसको पछाड़ना है, आपको उससे आगे निकलना है। तो यदि वो 10 घंटे पढ़ रहा है तो आपको 11 घंटे पढ़ना है। पर यदि आप डिस्कशन में पढ़े रहे, वो तो 10 घंटे पढ़ रहा है और आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई में दे रहे हो, 8 घंटे डिस्कशन में दे रहे हो, तो किसका फायदा कर रहे हो आप? अपना नहीं, उस दूसरे कैंडिडेट का जो इन चीजों से दूर है। तो हमें इन डिस्कशन से दूर होके हमें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। टाइम प्रेशियस है, ये हमें समझना है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।